Good afternoon, class. Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay, so in last class we were discussing the main four conditions of deadlock. Like there were four conditions which must hold simultaneously for the occurrence of deadlock, right? And we were discussing resource allocation graph. So now we have to discuss one more thing. I'm sharing PPT with you. Okay. Yes. So can you see the PPT now? No, ma'am. Now it's visible. Visible? Okay, great. Um, yes. So we have done till here. Okay, हमारे कुछ points discuss किए थे हम लोगों ने resource allocation graph discuss किया था and then we were discussing this how we can check whether deadlock is there or not using resource allocation graph. This was the example where there's a cycle in resource allocation graph and there was a deadlock, and in this example we had a cycle in the resource allocation graph and still there was no deadlock. So it implies that if a cycle is there and there is only single instance, that means there is deadlock. And if cycle is there but there are several instances of a particular resource, then deadlock, then the possibility of deadlock is low. Okay. Now we was talking about methods for handling deadlocks. First one is deadlock prevention and avoidance, which includes the system which do not that procedure, or you can call it like protocol, which by which we can control the system, which do not allow the system to get into a deadlock state. मतलब कि हम सिस्टम को डेडलॉक स्टेट में जाने ही नहीं दे रहे हैं, हम पहले ही प्रिवेंट कर ले रहे हैं डेडलॉक कंडीशन को, डेडलॉक सिचुएशन को. ओके, तो जब हम उसको पहले ही प्रिवेंट कर लेंगे तो हमारा डेडलॉक होगा ही नहीं, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होगी. दूसरी चीज ये थी कि हम डेडलॉक अगर हो रहा है तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जब हो जाएगा डेडलॉक, किसी का माइक ऑफ है, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए सभी लोग. Yes, so we just allow the system to enter in deadlock state, and then after that, our system can detect the deadlock and recover it also. Okay, so there are few methods to recover the system from deadlock that we will discuss later. Okay, like abort a process, you can just abort the process. Okay, by aborting the process all the resources will be available, and then you can allocate them accordingly so that the deadlock will not occur. Okay. Third is ignore the problem altogether. Deadlock हो रहा है, नहीं हो रहा है, prevent करना है, avoid करना है, just ignore everything. Deadlock हो रहा है, हो जाने दीजिए, नहीं हो रहा है तो well and good. Okay. So firstly we will talk about deadlock prevention in detail. हम पहले जो हमें methods की बात की deadlock को handle करने के लिए, तो पहले हमने बात की deadlock prevention की. So how we can prevent the system from deadlock? हम कैसे इस system को deadlock से बचा सकते हैं? अब मुझे ये बताइए, we were discussing the four conditions which must hold simultaneously for the occurrence of deadlock. So what were those conditions? Can anyone tell me what were those conditions? एक तो आपके सामने ही लिखी हुई है म्यूचुअल एक्सक्लूजन. But let's make it interactive. Why don't you give my response? आप लोग response नहीं देते हो बिल्कुल भी. मैम You should फर्स्ट respond. Hmm. म्यूचुअल Yes. एक्सक्लूजन, सेकंड होल्ड एंड वेट, Okay. थर्ड नो Yes. प्रिवेंशन, फोर्थ सर्कुलर Yes. टेस्ट. Very good. That's what I'm asking.
Someone has replied in the chat box also. Yes, very good, Abhilash. Okay, so there are 4 conditions: mutual exclusion, hold and wait, and no preemption, circular wait. तो अगर हमें प्रिवेंट करना है और हम बोल रहे हैं कि अगर डेडलॉक होना है तो ये चारों कंडीशंस एक साथ ट्रू होनी चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं अगर हमें डेडलॉक प्रिवेंट करना है तो हम इनमें से किसी एक कंडीशन को फॉल्स कर दें. Is it possible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So now we will discuss how we can make the condition false. Okay. So first condition was mutual exclusion. मतलब कि अगर एक प्रोसेस किसी रिसोर्स को यूज कर रहा है मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर, तो उस टाइम पे कोई और प्रोसेस उसको यूज नहीं कर सकता. दैट इज वाज द म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉपर्टी. अब बात आती है कि हाउ वी कैन प्रिवेंट दिस प्रॉपर्टी. ओके, तो उसके लिए आपके 2 तरह के रिसोर्स होते हैं. एक आपका होता है शेयरेबल, एक होता है आपका नॉन शेयरेबल. ठीक, नॉन शेयरेबल मतलब कि हम एक पर्टिकुलर कोई रिसोर्स है उसको कोई और दूसरा प्रोसेस शेयर नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता. शेयरेबल मतलब इसको शेयर कर सकता है ना, जिस रिसोर्स को एट अ टाइम मल्टीपल प्रोसेसेस यूज कर सकते हैं. ठीक है. अब जो नॉन शेयरेबल रिसोर्स है उसके लिए तो हमारी म्यूचुअल एक्सक्लूजन की प्रॉपर्टी, ये पीछे से वॉइस आ रहा है या तो मैं चेक करके बता देती हूँ, अदरवाइज तुम लोग खुद रुक जाओ. उज्जवल सक्सेना रिमूव कर देते हैं. आप अपना जो भी कर रहे हैं करते रहिए आराम से. Neither you disturb us nor we'll disturb you. ओके, तो जो नॉन शेयरेबल रिसोर्स है उनके लिए तो ये प्रॉपर्टी होल्ड होनी ही चाहिए, क्योंकि उनका नाम ही ये है नॉन शेयरेबल, मतलब कि उनको एक से ज्यादा प्रोसेस शेयर नहीं कर सकते. बात अब आती है शेयरेबल रिसोर्स की. शेयरेबल रिसोर्स के अंदर तो आपको म्यूचुअल एक्सक्लूजन की जरूरत ही नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर वो शेयरेबल है मतलब कि उन रिसोर्स को एक से ज्यादा प्रोसेस यूज कर सकते हैं, तो उस केस में डेडलॉक होगा ही नहीं. आप मेरी Yes. बात समझ में आ रही है? आप मैं क्या बोल रही हूँ आपको, Yes, ma'am, आ रही है. है ना? हाँ. अब जो इंट्रिंसिकली मतलब जिनको जो बने ही नॉन शेयरेबल हैं, जैसे कि आपकी राइट फाइल्स होती हैं, आपको राइट करना है. अगर आप राइट फाइल्स को अगर आप शेयरेबल बना देंगे, आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉपर्टी उनकी वायलेट कर देंगे, तो आपका डेटा इनकंसिस्टेंट हो सकता है. कैसे? सपोज करो कोई उस फाइल में राइट कर रहा है, प्रोसेस P1 बोल रहा है कि a की वैल्यू 2 है. उसी टाइम में अगर मैं उसको शेयरेबल बना देती हूँ, प्रोसेस P2 बोल रहा है कि नहीं a की वैल्यू 4 है, तो आपका डेटा इनकंसिस्टेंट हुआ नहीं हुआ? आपके एक वेरिएबल की 2 वैल्यूज आ रही है. Is it clear? So the resources which are intrinsically non-shareable, they cannot deny the mutual exclusion condition. So it is quite impossible to violate this condition. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next was hold and wait. Yes, here. Hold and to ensure that this condition never occurs in the system, we must guarantee that whenever process is requesting for a resource, it does not hold any other resource. हम बात कर रहे थे होल्ड एंड वेट कंडीशन की, जिसमें ये था कि आपका एक प्रोसेस ने होल्ड कर रखा है और किसी और के लिए वेट भी कर रहा है. तो अगर हमें इस कंडीशन को फॉल्स करना है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी प्रोसेस ने ऑलरेडी कुछ होल्ड कर रखा है तो वो अब किसी के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकता. ओके, तो इसके लिए 2 प्रोटोकॉल आपके निकाले गए. पहला प्रोटोकॉल कहता है कि requires each process to request and be allocated all its resources before its execution. इसमें ये बात कही है कि जब भी प्रोसेस मेरा स्टार्ट होगा तो उसको अपने कंप्लीट एग्जीक्यूशन के टाइम के वक्त जो भी रिसोर्स चाहिए होंगे वो एग्जीक्यूशन से पहले ही रिक्वेस्ट कर ले उन सब के लिए. ऐसा नहीं कि वो बीच बीच में रिक्वेस्ट कर पाए. ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या बोला कि जो भी पर्टिकुलर मेरा प्रोसेस है वो इनिशियली, ठीक है, एग्जीक्यूशन से पहले ही अपने रिसोर्सेस जो उसको चाहिए होंगे, चाहे वो उसको बहुत देर बाद चाहिए, चाहे वो उसको बिल्कुल पहले ही चाहिए,
नो मैटर व्हाट, वो पहले ही रिक्वेस्ट कर ले और उसको हम एक साथ सारे रिसोर्स दे दें, ठीक है। तो इसका प्रॉब्लम क्या था कि आपका बेटर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था रिसोर्स का। क्यों? ये समझिए आप, मैं हूं, मेरे को अभी फिलहाल पेपर चाहिए और मेरे को 1 घंटे बाद पेन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब सपोज कीजिए अगर मैं इस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग चलूं तो मतलब मेरे को पेन और पेपर चाहिए होगा, तो मैं पहले ही पेन और पेपर अपने पास रख लूंगी। अब 1 घंटे बाद मुझे पेन की जरूरत पड़ी, तो उस 1 घंटे के लिए तो मेरा पेन फ्री रहा ना, उस टाइम उस पेन को कोई नहीं यूज कर पा रहा, तो क्या बेटर यूटिलाइजेशन हो पा रहा है रिसोर्स का? हाँ नो जी, मैम। No, नहीं हो ma'am. पा रहा। तो इससे हमारी प्रॉब्लम क्या हुई कि अगर मेरा कोई रिसोर्स यूज नहीं हो रहा है बट वो स्टिल प्रोसेस के पास है, तो इससे मेरा बेटर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था, ठीक है। अगर वो फ्री पड़ा हुआ है उसके पास, तो इससे अच्छा उसे कोई और यूज कर ले, है ना। So that was the problem with this protocol. So an alternative protocol was allows a process to request a resource only when the process has none. मतलब कि अगर प्रोसेस किसी और रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उसे तभी रिक्वेस्ट कर सकता है जब उसके पास कोई भी रिसोर्स नहीं होगा। अगर वो रिक्वेस्ट करता है और उसके पास रिसोर्स है, फिर तो होल्ड एंड वेट वाली कंडीशन हो ही जानी है और हमको इसी कंडीशन को फॉल्स करना है। तो हमने क्या कहा कि वो सिर्फ जब ही रिक्वेस्ट कर सकता है जब उसके पास कोई भी रिसोर्स नहीं है, ठीक है। अब our process में request some resources and use them, वो कुछ रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करें, उनको यूज करें, और जब उसको और एडिशनल रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो उसके पास अभी फिलहाल है रिसोर्स, उनको पहले रिलीज करना पड़ेगा और फिर वो एडिशनल रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, These are ma'am. two protocols which we can use to violate the hold and wait condition. Okay. So here two disadvantages are mentioned here: low resource utilization, starvation. Low resource utilization I have already explained you. Starvation इसलिए हो सकती है, मुझे कोई बता सकता है ये starvation यहाँ पे क्यों, कैसे हो रहा है और क्यों हो सकता है? Yes, anyone? अगर सपोज करो कोई लॉन्ग प्रोसेस है, उसको कुछ रिसोर्सेस चाहिए, ठीक है, उसने यूज किया, उसने पहले ही इनिशियली उसने क्या कर मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम अब आ रही है। ये कब बीच में ये कब इंटरनेट ब्रेक हो गया मुझे पता ही नहीं चला। ये होल्ड एंड वेट का समझ में आ गया था ना, मैं स्टार्वेशन बता रही थी। स्टार्वेशन और इस तरीके से हो सकता है, सपोज कीजिए आई वाज गिविंग यू एन एग्जांपल कि मेरे को एक पेपर चाहिए, एक पेन चाहिए, बट इनिशियली आई जस्ट नीड अ पेपर, सो आई विल गेट द पेपर एंड आई विल डू माय वर्क यूजिंग दैट पेपर। नाउ आफ्टर सम टाइम आई नीड अ पेन आल्सो, ओके, आई नीड अ पेन, सो आई रिक्वेस्ट फॉर पेन। लेकिन मेरा सेकंड वाला प्रोटोकॉल ये कहता है कि मैं सिर्फ तभी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ रिसोर्स के लिए जब मेरे पास कोई भी ना हो, लेकिन मुझे जो आगे का काम करना है उसमें मुझे पेन भी चाहिए और पेपर भी चाहिए, है ना। लेकिन वो मुझसे कह रहे हैं कि जो आपके पास है पहले उसको रिलीज करो, फिर ही आपको एडिशनल रिसोर्स मिलेगा, तो ऐसे में तो मैं काम ही नहीं कर पाऊंगी।
आई बात समझ? Yes, ma'am. So that could lead to the starvation. Okay. Next protocol was no preemption. Just wait for a minute. Okay. Yes, no preemption. In the four necessary condition, we were discussing that if no preemption is there, then that could also lead to the deadlock situation. So, अगर if we allow preemption, ये बात करता है कि अगर preemption नहीं है, तो वो भी कंडीशन थी डेडलॉक के लिए. लेकिन हम बोलते कि अगर हम no preemption को हटा देते हैं, तो उससे हमारा प्रिवेंट हो सकता है डेडलॉक. So there should be no preemption of resources that has already been allocated. To ensure this, we can use the following protocol. First one is, if a process is holding some resources and requests another resources that cannot be immediately allocated to it, that is process must wait, then all the process resources currently being held are preempted. मतलब ये कहना चाह रहा है ये कि अगर मेरा प्रोसेस है उसने ऑलरेडी कुछ कोई रिसोर्स होल्ड कर रखा है और वो किसी और रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है जो कि उसको अभी फिलहाल नहीं मिल सकते. क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि वो रिसोर्सेज अभी अवेलेबल नहीं है. मतलब प्रोसेस मेरा वेट करेगा एडिशनल रिसोर्सेज के लिए. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो भी रिसोर्स उसने होल्ड कर रखे हैं उन सारे रिसोर्सेज को मैं क्या करा दूंगी, प्रीएम्प्ट करा दूंगी, रिलीज करा दूंगी, जिससे कि एटलीस्ट उन रिसोर्स को कोई और तो यूज कर सके. ठीक है. तो जैसे मैंने आपको डेडलॉक का बताया था P1 P2 का कि दो स्टूडेंट हैं. ठीक है. तो जैसे मैंने बताया था आपको एग्जांपल में, एक के पास पेपर है, एक के पास पेन है. तो फर्स्ट वाले को के पास पेपर है, उसको पेन और चाहिए. सेकंड वाले के पास पेन है, उसको पेपर और चाहिए. अगर मैं इस नो प्रीएम्पशन को वॉयलेट करूंगी तो इसमें इस तरीके से होगा, इस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग, कि जैसे फर्स्ट वाले के पास पेपर है और वो पेन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन पेन उसको भी नहीं मिल सकता क्योंकि वो ऑलरेडी किसके पास एलोकेटेड है, सेकंड स्टूडेंट के पास. तो हम क्या करेंगे, हम जो फर्स्ट वाला स्टूडेंट है अगर वो वेटिंग में चला गया है, वो वेट कर रहा है पेन के लिए, तो उसने जो भी रिसोर्स होल्ड कर रखा है हम उसको प्रीएम्प्ट करा देंगे. तो उसका पेपर रिलीज हो गया, पेपर जो उसने होल्ड कर रखा था वो रिलीज हो गया. अब क्या होगा, सेकंड वाला स्टूडेंट वाज वेटिंग फॉर पेपर, उसको पेपर मिल जाएगा तो वो कंप्लीट कर लेगा अपना काम. और जब वो खुद कंप्लीट कर लेगा सेकंड स्टूडेंट, वो पेन को भी रिलीज कर देगा. तो दोनों अब फर्स्ट को मिल जाएंगे और फर्स्ट वाला भी मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Ma'am. ओके. Yes, ma'am. नेक्स्ट थोड़ा इज थोड़ा थोड़ा क्या क्लियर नहीं है बताओ. थोड़ी सी कंफ्यूजन सी हो रही है कि मतलब देखो मैं बताती हूँ आपको, रुको. सपोज देयर इज स्टूडेंट 1 and 2. ओके. इसके पास अभी A है, बाद में इसको B चाहिए. अभी इसके पास क्या है, A है. इसके पास B रिसोर्स है, बाद में इसको A भी चाहिए. अब फर्स्ट ने क्या किया, बाद में B के लिए रिक्वेस्ट किया. B अवेलेबल है आपके पास? क्या B अवेलेबल है? मैम एक के पास No, ma'am. के पास है. नहीं है ना अवेलेबल, Yes, क्योंकि ma'am. स्टूडेंट सेकंड के पास है. ओके तो क्या ओके करेगा ये वेट करेगा, वेट करेगा अब ये. अब ये प्रोटोकॉल कहता है कि अगर प्रोसेस वेट कर रहा है किसी एडिशनल रिसोर्स के लिए, तो जो उसने प्रीएम्प्ट कर रखा था, जो उसने होल्ड कर रखा था उसको मैं प्रीएम्प्ट करा दूंगी. तो इसने क्या होल्ड कर रखा था, एक A. हो गया. तो A को मैंने क्या कर दिया, प्रीएम्प्ट करा दिया. मतलब कि कोई और प्रोसेस इसको अब यूज कर सकता है, ये रिलीज हो गया है. तो अब देखो सेकंड वाले को क्या चाहिए था, A चाहिए. B उसके पास ऑलरेडी है, उसको Yes, A चाहिए. तो अब A इसको मिल जाएगा, A तो रिलीज हो गया. तो फिर सेकेंड प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा. एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन,
स्टूडेंट 1 को ये दोनों रिसोर्स मिल जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट 2 उनको रिलीज कर देगा अपना काम खत्म करने के बाद, एंड सिमिलरली स्टूडेंट 1 विल आल्सो कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन. इज इट क्लियर? ओके मैम. Yes, ma'am. ओके ओके. नेक्स्ट इज, इसमें इसी बात को एग्जांपल फिर से लिखा हुआ है. इन अदर वर्ड्स, दीज रिसोर्सेज आर इम्प्लिसिटली रिलीज्ड. ओके, द प्रीएम्प्टेड रिसोर्स एडेड टू द लिस्ट ऑफ, जो प्रीएम्प्ट किए थे रिसोर्सेज उनको हम अवेलेबल लिस्ट में डाल देंगे. जैसे मैंने एक को प्रीएम्प्ट किया तो मैंने इसको अवेलेबल लिस्ट में डाल दिया. For which the process is waiting. The process will be restarted only when it can regain its old resources as well as the new ones that it is requesting. और कब मेरा स्टार्ट होगा वो प्रोसेस, रीस्टार्ट कब होगा ये वाला, जब इसको जो चाहिए वो भी मिल जाएंगे और जो उसके पास पहले से थे वो भी जब मिल जाएंगे तब ये अपना काम रीस्टार्ट कर सकता है. इज इट क्लियर? नो प्रीएम्प्शन कंडीशन समझ में आई कैसे हम इसको फॉल्स कर रहे हैं? यस मैम. ओके, नेक्स्ट वो सर्कुलर वेट. सर्कुलर वेट में क्या हो रहा था आपका कि हमारा सर्कुलर वेटिंग बन रहा था, तो उस वजह से हमारी डेडलॉक हो रही थी. ठीक है, जिससे टू इंश्योर दैट दिस कंडीशन नेवर होल्ड इज टू इम्पोज द टोटल ऑर्डरिंग ऑफ ऑल रिसोर्स टाइप्स. हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हमें इसको वॉयलेट करना है तो देयर इज वन गुड सोल्यूशन हियर, दैट इज वी कैन गिव सम नंबर टू द रिसोर्सेज. वील ऑर्डर द रिसोर्सेज. हमने 1 2 3 4 इस तरीके से हमने एक नंबर दे दिया है रिसोर्सेज को. और एंड इफ वी हैव एंड टू रिक्वायर दैट ईच प्रोसेस रिक्वेस्ट रिसोर्सेज एंड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इन्यूमरेशन. इसको आप ऐसे समझ लीजिए, सपोज आई हैव देयर इज अ प्रोसेस P1. ओके, देयर इज प्रोसेस P1 एंड इट नीड्स रिसोर्स 1. okay, after that suppose it request for resource 2 and after that it request for resource 4. कोई दिक्कत नहीं है, इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएंगी. लेकिन अगर सपोज कीजिए जब वो फोर्थ वाले रिसोर्स को होल्ड कर लेगा और उसके बाद इफ इट रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्स 3, सो इट इज नॉट पॉसिबल. मतलब वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिक्वेस्ट कर सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिक्वेस्ट नहीं करेगा. अगर उसको 3 चाहिए तो उसको पहले 4 रिलीज करना पड़ेगा, तभी उसको 3 मिलेगा. इज इट क्लियर? ये समझ में आया कैसे हम काम कर रहे हैं इसमें प्रोटोकॉल में? किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए. आई रिपीट. Anyone having any doubt? मैम ये डेडलॉक को क्या बेटा? आपकी आवाज नहीं आ रही है. मैम ये चलिए. पूछा मैम, फिर ये मैम डेडलॉक हाँ. को प्रिवेंट कैसे करेगा मैम? हाँ वो मैं बताती हूँ, रुको बताती हूँ. वो भी बताती हूँ. ठीक है, पहले सुन लो. ये सब पॉइंट समझ में आ गया ना कि हम क्या कर रहे हैं इस प्रोटोकॉल में, कैसे करेगा वो हम डिस्कस करेंगे अभी. सो द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू प्रिवेंट डेडलॉक. ओके, इसमें इस लाइन में यही सब लिखा हुआ है जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा. जैसे सपोज कीजिए ये है आपका P1, ये R1 इसके पास ऑलरेडी है और इसके पास R2 ऑलरेडी है. ठीक है, आप सपोज करो P1 रिक्वेस्ट कर रहा है R2 के लिए, तो वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. अब सपोज करो P2 रिक्वेस्ट कर रहा है R2 के बाद R1 के लिए, तो हम उसको नहीं करने देंगे. क्यों? क्योंकि हमारा जो रिक्वेस्टिंग होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए? इंक्रीजिंग ऑर्डर में. तो अगर मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखती तो P1 पहले R1 को करता और P2 पहले किसको करता? R1 को ही. देखो मैं बताती हूँ यहाँ पे कैसे होता फिर आपका. देखो P1 को क्या चाहिए? R1 चाहिए और R2 चाहिए. सिमिलरली P2 क्या चाहिए? R1 और R2. इस डायग्राम के अकॉर्डिंग P1 के पास R1 है और P2 के पास R2 है. P1 को R2 चाहिए जो कि P2 के पास है, वो नहीं देगा जब तक उसका काम कंप्लीट नहीं होगा.
P2 के पास R2 है लेकिन उसको भी R1 चाहिए और वो किसके पास है, P1 के पास, और वो कब तक नहीं देगा, जब तक उसका काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो ये डेडलॉक हो गया है। अब अगर मैं ऑर्डरिंग वाला प्रोटोकॉल फॉलो करती हूँ, देखो कैसे यहाँ पे प्रिवेंट होगा। अब P1 को R1 R2 चाहिए, तो किस ऑर्डर में रिक्वेस्ट करना चाहिए प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग, पहले R1 के लिए करना चाहिए फिर R2 के लिए करना चाहिए। सिमिलरली P2 के को भी R1 R2 चाहिए, तो वो भी किस ऑर्डर में करना चाहिए उसको रिक्वेस्ट, किस ऑर्डर में करना चाहिए P2 को भी। हेलो। मैम डिस्कनेक्ट हो गई हैं। तो होस्ट कौन बन गया है? स्क्रीन शेयर और कर मैम दो। कहाँ गई ले? क्या सेंड करो यार। शौर्य स्क्रीन शेयर करो यार, जो भी है। तो और भी क्लास है। पीपीटी शेयर करो। अरे इसके पास कहाँ से आई पीपीटी? मैम आई गाइस। यस, ये कौन होस्ट बन गया है भाई? शौर्य शौर्य मैम। ओके, जिसने भी ये स्क्रीन शेयर कर रखा है, शौर्य अपनी स्क्रीन ये हटाओ। शौर्य अपनी स्क्रीन हटाओ बेटा, मुझे स्क्रीन शेयर करनी है। यस, तो बेटा P2 को भी R1 R2 चाहिए। P2 किस ऑर्डर में करेगा रिक्वेस्ट? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। R1 R2 के ऑर्डर में, ठीक है। देखो यहाँ पर R1 R2 के ऑर्डर में करना चाहिए P2 को भी, और P1 को भी R1 R2 के ऑर्डर में करना चाहिए, ठीक है। इस ऑर्डरिंग से अब क्या फायदा होगा, देखो सपोज P1 को पहले R1 के लिए रिक्वेस्ट करेगा, अगर उसको दोनों चाहिए तो सबसे पहले वो R1 के लिए रिक्वेस्ट करेगा, उसको R1 मिल जाएगा क्योंकि इनिशियली R1 इज फ्री। Now P2 will also request in this order, so P2 will request for R1 first. Is R1 available? नो मैम। नो मैम। R1 available, P2 को आगे R2 भी नहीं मिल पाएगा, क्यों? क्योंकि उसको पहले R1 मिलेगा फिर R2 मिलेगा। ओके, फिर आवाज गई। क्या हो गया भाई? वॉइस चली गई थी आपकी अभी। अच्छा, अब आ रही है? यस मैम। हाँ, P1 को R1 मिल चुका है, R2 के वॉइस कट रही है आपकी बार बार।
अरे यार क्या हो रहा है ये? आप कौन बन गया? निधि बन गया क्या? इसीलिए टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं है। आ गई मैम, आ गई। हाँ, एक मिनट। तो अगर मैं बात कर रही थी P1 P2 की, P1 के पास R1 है और वो R2 उसको मिल जाएगा क्योंकि R2 अवेलेबल है। तो इससे P1 अपना काम कंप्लीट कर लेगा और जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो P2 को R1 मिल जाएगा क्योंकि P1 अपने रिसोर्सेज को रिलीज कर देगा। तो P2 को R1 मिल जाएगा और फिर बाद में R2 भी मिल जाएगा क्योंकि R2 भी अवेलेबल है। तो इससे दोनों अपना स्मूथली अपना काम एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अब समझ में आया कैसे प्रिवेंट कर रहा है ये? यस जिसका मैम। डाउट था अगर P1 क्लियर बड़ा हो गया प्रोसेस है, सबको? क्या बेटा? अगर P1 बड़ा प्रोसेस है और तो फिर उसके बाद उसको कंप्लीट होने में ज्यादा टाइम लगेगा और P2 को ज्यादा से ज्यादा वेट करना पड़ेगा। हाँ, वो तो करना पड़ेगा, बट एटलीस्ट डेडलॉक तो नहीं हो रहा, वेटिंग ही तो हो रहा है। यस मैम, डेडलॉक में तो दोनों काम नहीं कर पा रहे थे, इसमें कम से कम एक तो काम कर पा रहा है यस मैम। ना? हाँ, तो अगर हमें प्रिवेंट करना है अपना डेडलॉक, तो हम इन चारों कंडीशन में से किसी एक को अगर फॉल्स कर देंगे तो वी कैन प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डेडलॉक। अब समझ में आया हम कैसे वन बाय वन मैंने आपको क्लियरली बताया है कैसे हम इन चारों कंडीशंस को फॉल्स कर सकते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया है बेटा? यस यस मैम। मैम। कोई डाउट यहाँ तक? अब समझ में आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम? यस मैम। ठीक है, और अगर कोई डाउट्स लगते हैं तो आप पूछ सकते हो कभी भी। ठीक है, जब आपको लगे डाउट है, और पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अब ऐसा मत करना क्योंकि आपको लास्ट में एक साथ पढ़ रहे हो, बहुत बर्डन होगा एट द एंड। ठीक है, और ये चीजें ऐसी नहीं है कि आप एक साथ पढ़ लो आपको समझ में आ जाएंगे, बहुत ही लॉजिकल चीजें हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, तो आई सजेस्ट यू टू स्टार्ट रीडिंग योर बुक। ओके, और पढ़ते वक्त कोई डाउट आता है तो उसी वक्त पूछो। ठीक है, यू कैन मेक अ ग्रुप ऑल्सो ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर यू कैन send your doubts. Okay, and I'll clear your doubts, I'll answer your questions. ठीक है, चलिए क्लास, थैंक यू, नाउ यू मे लीव। थैंक यू मैम। ओके, मैम पीपीटी सेंड कर दीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है।